Hi students, hello everyone. Today we are going to discuss lecture number 10 from chapter number 3 and the name of chapter is Inheritance and Variation. So let us discuss X-linked inheritance that occurs by X-linked genes and the name of disorder is हीमोफीलिया. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थी कलर ब्लाइंडनेस. आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिसऑर्डर हीमोफीलिया. The hemophilia is an X-linked recessive disorder in which blood falls to clot very slowly. In case of hemophilia, the clotting of blood does not occur properly, and due to that excessive bleeding occurs from the any injury. So therefore this disease is called as bleeder's disease. Okay. Second point, the genes for normal clotting are dominant over recessive gene for hemophilia. हीमोफीलिया के लिए नॉर्मल जीन रहते हैं, दैट इज डोमिनेंट जीन X capital H. So that is the dominant gene for hemophilia. The person having recessive gene for hemophilia is to lose clotting factor 8 or and 9 in case of blood. Hemophilic person having lost the blood clotting factor like factor 8 and factor 9 in their blood. So due to that, blood coagulation not occurs when small injury occurs, and that causes excessive bleeding. When the excessive bleeding occurs, then this disease is called bleeder's disease. The recessive gene for hemophilia is located on non-homologous region of X chromosome. Here for hemophilia, the recessive gene which is located on non-homologous region of X chromosome. पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था रेसेसिव जीन जो रहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया के लिए, तो नॉन होमोलॉगस रीजन रहता है एक्स क्रोमोसोम का, वहाँ पे रहते हैं. एज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग एलील्स ऑन वाई क्रोमोसोम, सो मेल्स आर सफरर टू हीमोफीलिया. वाई क्रोमोसोम में हीमोफीलिया के करस्पॉन्डिंग एलील नहीं रहते हैं, इसलिए मेल्स जो है वो सफर रहते हैं. whereas women having both X and Y chromosome, hence females are generally carriers, इसीलिए females generally carriers रहते हैं. Now see the genotype of male and female individual for hemophilia. Normal genes here, hemophilic gene and carrier gene. Three types of parents are there, genes are there. So normal male X capital H capital Y, hemophilic X small h capital Y, and carrier no carrier, male carrier नहीं रहते हैं. Whereas female, normal female के genes X capital H, hemophilic के X small h, whereas females are carrier in which one is dominant gene and other is recessive X capital H, X small h. तो ये जीनोटाइप रहेंगे नॉर्मल मेल एंड फीमेल के लिए, हीमोफिलिक मेल एंड फीमेल के लिए, एज वेल एज करियर एंड फीमेल के मेल एंड फीमेल के लिए. So carrier only found in females, not in males. Similar to the color blindness, hemophilia also shows criss-cross inheritance. It also shows criss-cross inheritance. That means the genes for hemophilia transfer from grandfather to grandson through the carrier daughter.
सो दैट इज़ नथिंग बट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यानी कि ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन, इनके द्वारा ही ये इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम उसे कहेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. एंड इट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग द फॉलोइंग एग्जांपल्स. सो लेट अस सी एग्जांपल्स फॉर हीमोफीलिया. व्हेन मैरिज ऑकर्स बिटवीन हीमोफिलिक मेल एंड नॉर्मल फीमेल, ये दोनों का क्रॉस करना है. हीमोफिलिक मेल, इसके लिए जीनोटाइप आएंगे कैपिटल एक्स स्मॉल एच वाई, और करियर के लिए आएंगे नॉर्मल फीमेल के लिए आएंगे एक्स कैपिटल एच. गैमेट सेपरेट किए जाएंगे एक्स स्मॉल एच या से वाई, एक्स कैपिटल एच हियर, एक्स कैपिटल एच दोनों कंडीशन में. फिर ये दोनों का क्रॉस ये दोनों के साथ करना है जो हमने गैमेट लिए. सो फर्स्ट क्रॉस विथ थर्ड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल एच करियर डॉटर. सेकंड मीन्स फर्स्ट का क्रॉस 4 के साथ, सो हियर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच. देन second cross with third, there is formation of normal male, whereas second cross with fourth, there is formation of again normal sons. So what is the conclusion for that? In case of F1 generation, 50% daughters are career, यहाँ पे देखा है career daughters, 50% daughters are career and 50% are normal sons. सो हियर देयर इज़ नो हीमोफिलिक. तो यहाँ पे हमने देखा हीमोफिलिक मेल, तो ये जो जीन्स है वो अभी करियर डॉटर में आ गए. नेक्स्ट क्रॉस करेंगे हम. व्हेन मैरिज ऑकर्स बिटवीन करियर डॉटर, हियर द मैरिज ऑकर्स बिटवीन करियर डॉटर एंड नॉर्मल मेल. सो करियर डॉटर एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच, नॉर्मल मेल कैपिटल एच वाई. सो हमेशा की तरह क्रॉस करके यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे. और 4 ऑफस्प्रिंग में यानी कि F1 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगी, 1 2 3 एंड 4. सो इन दिस केस 25% फीमेल नॉर्मल, देन 25% male normal, whereas 25% female career and other 25% यानी चारों में से एक यानी 25% जो मेल आएंगे वो हीमोफिलिक आएंगे. कौन से आएंगे? हीमोफिलिक आएंगे. यहाँ पे कलर ब्लाइंड दिया हुआ है तो हीमोफिलिक चाहिए. दिस वन, ये मिस्टेक है बुक में. सो हियर द मेल आर सफरर, या 25% जो मेल आता है वो हीमोफिलिक आएगा. सो देयरफॉर दे आर सफरर. तो कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक जीन जो ट्रांसफ़र हुआ है वो ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू द करियर डॉटर. सो दैट इज़ नथिंग बट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ये हो गया एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कंप्लीट. नाउ लेट अस डिस्कस वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. दैट वाई लिंक इनहेरिटेंस caused by Y linked genes. So what are Y linked genes? The genes located on non-homologous region of Y chromosome are called as Y linked genes. तो Y linked genes किसे कहेंगे हम? जो जीन्स नॉन होमोलॉगस रीजन में रहेंगे वाई क्रोमोसोम के, उसे कहेंगे वाई लिंक जीन्स. एंड दैट वाई लिंक जीन्स शोज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. द वाई लिंक जीन्स आर इनहेरिट डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल. वाई लिंक जीन्स दे आर डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल. उसका रीज़न ये है कि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल में ही रहेंगे. तो इसके जो रिसेसिव जीन्स है जो वाई क्रोमोसोम से लिंक है तो वो डायरेक्टली सिर्फ मेल टू मेल ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं. एक्स क्रोमोसोम या फीमेल से या डॉटर से वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे.
Hypertrichosis is the Y-linked disorder. Hypertrichosis is the Y-linked disorders which is caused by Y-linked genes, and hypertrichosis is characterized by presence of excessive hair on ear pinna. जो भी पर्सन है ये ऑब्वियसली हाइपरट्राइकोसिस Y-linked disorder है, so that only found in males. In this case प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना. बहुत सारे पर्सन ऐसे रहते हैं उनके जो ईयर पिन्ना रहते हैं वहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोज होते हैं. दिस ग्रो दैट मीन्स सच टाइप ऑफ हेयर्स आर नॉट शोज एनी रोल, so they are excessive. So presence of excessive hair on ear pinna is the characteristics of hypertrichosis. This character transfer from father to son. और ये जो Y-linked जीन्स है या Y-linked डिसऑर्डर्स है या हाइपरट्राइकोसिस की कैरेक्टर है, दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू सन. तो अगर फादर को हाइपरट्राइकोसिस है तो वो उनके सन को होता है बिकॉज दिस जीन्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू सन. और ये जो हाइपरट्राइकोसिस डिसऑर्डर है, एक्सेसिव हेयर रहते हैं ईयर पिन्ना पे, तो दैट डिसीज इज़ नॉट लीदल. डेंजरस डिसीज़ तो वो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक्सेसिव हेयर्स ईयर पिन्ना में रहते हैं, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो आज हमने ये एक्स लिंक और वाई लिंक जीन्स डिस्कस किया. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना.